इलेक्ट्रिकल ब्रांच में या मैकेनिकल सिविल, ऐसे ब्रांच में ऑलरेडी पूछे गए हैं। सो जहां पर ये हो तो उसी टाइप के एग्जाम्पल होंगे। तो आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि फॉर्मूला बहुत समझना इंपॉर्टेंट है। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट कंसेप्ट, फूरियर इंटीग्रल थ्योरम। सपोज f of x satisfies the two conditions. First is f of x should satisfy Dirichlet condition. Dirichlet condition मतलब क्या है? It should be piecewise continuous and its derivative is also piecewise continuous. That is the important condition. Now, second important thing is it should be absolutely integrable. Absolutely integrable मतलब क्या है? इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी मॉड एफ ऑफ एक्स, इसका इंटीग्रेशन एग्जिस्ट होना चाहिए इन है, तो वो कॉन्वर्जेंट वहां से है। तो अगर ये इंटीग्रेबल इंटीग्रेशन एग्जिस्ट करता है माइनस इंफिनिटी इंफिनिटी नॉट एफ ऑफ एक्स मॉड एफ ऑफ एक्स का अगर एग्जिस्ट करता है तो सच इज कॉल्ड एज absolutely integrable. So दो कंडीशन होनी चाहिए, फंक्शन should satisfy Dirichlet condition and f of x should be absolutely integrable. Then the Fourier integral representation or Fourier integral is given by 1 upon 2 pi integration minus infinity to infinity integration minus infinity to infinity f of u e raised to minus I lambda u e raised to I lambda x du d lambda. ओके ये डेफिनेशन नोट डाउन करो क्योंकि मैं अगला डेफिनेशन जब लूंगा मैं आपको एक क्वेश्चन करने वाला हूं। राइट डाउन दिस फॉर्मूला फूरियर इंटीग्रल का। ओके, राइट डाउन दिस फॉर्मूला ऑफ फूरियर इंटीग्रल। वन अपॉन टू बाय इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी इंटीग्रेशन माइनस इंफिनिटी टू इंफिनिटी एफ ऑफ यू ई रेस टू माइनस आई लैम्बडा यू e raised to I lambda x du d lambda. Okay, everyone written this formula? सब लोगों ने लिखा है? Yes, sir. Okay. Now, Yes, sir. Similarly, if we express this e raised to I lambda x, e raised to I lambda x को और e raised to minus I lambda u को हम एक्सप्रेस कर सकते हैं using the Euler's theorem, sin lambda u minus I cos lambda u, sin lambda x plus I cos lambda x. So using that expression, this Fourier integral can be reduced into two parts. One is called as Fourier sine integral and another one is called as Fourier cosine integral. And using the definition of even odd function का use करके this integral can be reduced into two types of integral. First is Fourier sine integral. Fourier sine integral क्या है? Instead of 1 upon 2 pi, it is 2 upon pi. Integration 0 to infinity. Integration f of u cos lambda u du d lambda. So these three definition, आप ये तीनों भी डेफिनेशन लिख लो क्योंकि हम इसी फॉर्मूले से हम 3-4 MCQs कैसे जनरेट हो सकते हैं और किस टाइप के MCQs पूछ सकते हैं बाय जस्ट ऑब्जर्विंग। आपको ऑब्जर्वेशन से MCQs इन एग्जाम सॉल्व करने के लिए आ सकते हैं। सो याद होंगे तो दिस इज somehow related to that formula, डायरेक्टली नहीं है बट अगर फूरियर कोएफिशिएंट अगर आप देखते होंगे तो somehow you can relate this coefficient 1 upon 2 pi 2 upon pi इसी टाइप से हुआ है। ये कैसे जनरेट हुआ है इतना एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास टाइम नहीं है, बट इफ यू गो थ्रू एनी स्टैंडर्ड बुक यू विल गेट दिस कि ये कैसे जनरेट हुआ है फॉर्मूला। वी आर इंटरेस्टेड नाउ इन फॉर्मूलाज ओनली। सो फॉर्मूला लिख तीनों भी फॉर्मूला लिखे हैं, हो गया तीनों फॉर्मूला लिखे, शुड बी
Go further. Yes, sir. Okay. So let's start with the definition of Fourier transform. Okay. Again, मैं जो Fourier transform का definition बोलूंगा, inverse Fourier transform का definition बोलूंगा. This we have to relate with these three formulas. The question I'm going to ask you: relate the Fourier transform, inverse Fourier transform, with respect to the these three formulas we have studied in Fourier integral representation. Okay. So Fourier transform. Suppose f of x, which satisfies the Dirichlet condition, then Fourier transform of x is given by capital F of lambda equal to integration minus infinity to infinity f of u e raised to minus I lambda u du. Okay? Definition of Fourier transform क्या है? Integration minus infinity to infinity f of u e raised to minus I lambda u du. Okay, this is standard definition. मैं कुछ और आपको अलग टाइप के डेफिनेशन भी हो सकते हैं, वो भी बताऊंगा. दैट विल बी एप्लीकेबल फॉर एमसीक्यू में ऑप्शन कैसे आएंगे उसके ऊपर है. ये जो बाहर का कोएफिशिएंट लिखा है हमने वो 1 है. कुछ बुक्स उसको यूज करते हैं √2/π आउटसाइड. तो वो आंसर एमसीक्यू में क्या है उससे हम डेफिनेशन कौन सा यूज करना है वो देखना है. वी विल कैलकुलेट दिस ओनली वो √2/π क्वेश्चन में है या नहीं है ट्रांसफॉर्म के, वो हमको देखना है. मैं वो एग्जांपल सॉल्व करते वक्त आपको एक बता दूंगा कि कैसे करना है. ओके, नाउ ये हो गया फूरियर ट्रांसफॉर्म. देन जैसे फूरियर ट्रांसफॉर्म है उसका इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म भी होता है. सो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. सो इफ f of lambda is the Fourier transform of f of x, then the inverse Fourier transform is given by f of x equal to 1/2π integration minus infinity to infinity f of lambda e raised to I lambda x d lambda. 1/2π integration minus infinity to infinity f of lambda e raised to I lambda x d lambda. तो ये हमेशा ध्यान में रखो, whenever you calculate Fourier transform it should be in terms of lambda. ये जो सॉल्व करोगे इंटीग्रेशन आपको आंसर लैम्बडा में मिलेगा. एंड व्हेन यू कैलकुलेट इनवर्स ट्रांसफॉर्म इट विल बी इन टर्म्स ऑफ x. ओके, डेफिनेशन समझ में है? फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म. Yes, sir. Now my question is, observe the Fourier integral representation. Fourier integral जो फर्स्ट फॉर्मूला लिखा था एंड दिस टू फॉर्मूले, आप क्या कमेंट कर सकते हो? ऑब्जर्व करो और मुझे बताओ कि आपको क्या दिख रहा है. इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन दीज ऑल? कुछ है ऐसा रिलेशन या नहीं है? जस्ट ऑब्जर्व करना है और आपको ऑब्जर्व करके बताना है. यस, एनीवन? कुछ रिलेशन आप देख सकते हो? कुछ सिमिलैरिटी दिख रहा है? Yes, sir. f of lambda. यस. अगर आप f ऑफ लैम्बडा की वैल्यू यहां पे सेकंड जो हम देख रहे हैं इस पे पुट करते हो तो इज इट सेम एज फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन? अभी जो इनवर्स फूरियर ट्रांसफॉर्म हमने देखा वहां पर अगर f ऑफ लैम्बडा का जो फॉर्मूला है वो रिप्लेस कर दो तो आर यू गेटिंग इज फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन? Yes, sir. दिख रहा है?
बोथ सेम। Yes, sir. Yes. Yes, sir. both are तो same. यहाँ पे आपको 3 टाइप के एमसीक्यूज जनरेट हो सकते हैं। ओके, कैसे? आपको एक फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा एंड वहां पे पूछ सकते हैं कि व्हाट इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म। तो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म। ये जो यहाँ पर एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू जो होगी, दैट इज योर फूरियर ट्रांसफॉर्म। दैट्स इट, ऑब्जर्व करके आंसर लिखना है। ओके, ये एक क्वेश्चन हो सकता है। या आपको फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करने के लिए बोला जाएगा, तो आपको फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करना है, मतलब क्या करना है? यू हैव टू कैलकुलेट फूरियर ट्रांसफॉर्म एंड रिप्लेस द वैल्यू ओवर हियर। यू हैव टू कैलकुलेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म, एफ ऑफ लैम्बडा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसमें रिप्लेस करनी है। ओके, और थर्ड टाइप का एग्जांपल क्या होगा, मैं एक एग्जांपल लेके ही आपको बताऊंगा। वो थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा सॉल्व करके ही, बट बाय दिस टू डेफिनेटली आपको क्वेश्चन पूछ सकते हैं। जो पहला जो मैंने बोला कि आपको दिया जाएगा एफ ऑफ एक्स, एक फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा एंड दे विल आस्क यू व्हाट इज द फूरियर ट्रांसफॉर्म। सो यू डोंट नीड टू कैलकुलेट द फूरियर ट्रांसफॉर्म। यहाँ पर जो e रेज टू आई लैम्बडा एक्स का कोएफिशिएंट होगा लैम्बडा में, इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा जो कोएफिशिएंट होगा, दैट इज योर फूरियर ट्रांसफॉर्म। दैट्स इट, बाय जस्ट ऑब्जर्वेशन आपको वो लिखना होगा। बट ये ऑब्जर्वेशन करते वक्त ये हमेशा ध्यान में रखना है कि आउटसाइड का कोएफिशिएंट जो है ना वो देखो। कभी कभी क्या करते हैं, बाहर का कोएफिशिएंट 1/2 पाई दिया जाता है, कभी कभी वो नहीं दिया जाता है। कभी वो लेफ्ट हैंड साइड में 1/2 पाई यहाँ पे भी हो सकता है, या राइट हैंड साइड में वो है क्या, वो देखना है। अगर वो नहीं है तो वो एडजस्ट करना पड़ेगा आपको इन आंसर। If it is given 1/2 pi in the Fourier integral representation, nothing to be adjusted. But if it is not given, we have to make the adjustment. We have to make the adjustment of this. Okay? Clear? Is it clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So let's go to the second, Fourier cosine transform. Before that, एक चीज मैं भूल गया। Whenever there is question of Fourier transform, Fourier transform में question होगा complete transform, तो आपको देखना है whether function is even or odd. Okay? First you will check whether the function is even or odd. वो कैसे चेक करना है? वो कैसे चेक करना है? फंक्शन इवन ऑड चेक कैसे करते हैं? How you will check whether the function is even or odd? Is anyone? How you will check function is even or odd? Audible? सर वैल्यू 0 डाल के अगर सेम फंक्शन है तो इवन होता है। 0 या -x पुट करना है? We have to- Minus की x. जगह -x पुट किए। f of -x, अगर f of x आता है तो फंक्शन इवन है। f of -x इक्वल टू f of x माइनस टाइम्स f of x आता है तो इट इज ऑड है। अगर ये दोनों भी नहीं है देन इट इज नाइदर इवन नॉर ऑड। तो व्हेनेवर देयर इज क्वेश्चन ऑन -∞ to ∞ इंटरवल है और फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन है, तो हम चेक करेंगे वेदर इट इज इवन और ऑड। इफ इट इज इवन then we will calculate Fourier cosine transform. If it is odd, then we will calculate Fourier sine transform. If it is neither even nor odd, then we will use this definition: integration -∞ to ∞ f of u e raised to minus I lambda u d. Okay? अगर even है, then we will calculate cosine transform. चलो cosine transform क्या होता है देखते हैं। So it is using the property of इवन ऑड फंक्शन का यूज करके ही ये डेफिनेशन जनरेट हुआ है। सो फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म इज एक्चुअली नथिंग बट फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ इवन फंक्शन आल्सो। तो इट इज डिनोटेड बाय एफ सी लैम्बडा। नोटेशन में चेंज होने के लिए एफ ऑफ लैम्बडा इज फूरियर ट्रांसफॉर्म
FC lambda is Fourier cosine transform, is given by integration 0 to infinity f of u cos lambda u d, f of u cos lambda u d, and inverse Fourier cosine transform is 2 upon pi integration 0 to infinity fc lambda cos lambda x d lambda. अगेन यहां पे अगर आप fc लैम्बडा की वैल्यू पुट करते हो इस इनवर्स में तो यू विल गेट द फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन, आपको वो फूरियर कोसाइन इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन मिलेगी. ओके, सो अगेन जैसे मैंने बोला फूरियर ट्रांसफॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है, फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन दिया होगा एंड फूरियर कोसाइन रिप्रेजेंटेशन दिया होगा एंड आपको क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज अ फूरियर ट्रांसफॉर्म. तो आपको ऑब्जर्व क्या करना है, cos लैम्बडा x को कोएफिशिएंट जो होगा इन टर्म्स ऑफ लैम्बडा दैट इज योर फूरियर ट्रांसफॉर्म, प्रोवाइडेड ये जो 2 अपॉन पाई है यहाँ पे या लेफ्ट हैंड साइड पे पाई बाय 2 इस फॉर्म में होना चाहिए. अगर नहीं होगा देन you have to adjust it in MCQ. Okay, similarly Fourier cosine transform जैसे Fourier sine transform is given by this and inverse Fourier sine transform is given by this. Clear? Is the definitions clear of Fourier sine transform, Fourier cosine transform? डेफिनेशन क्लियर है सभी को? कुछ डाउट है? Okay, so let's solve some examples based on, there are different types of examples we have to check. The first type of example हम देखेंगे Fourier integral representation. Okay, so first example, find the Fourier integral representation of, एक फंक्शन दिया है f of x equal to 1 if mod x less than 1, half mod x equal to 1, 0 if mod x greater than 1. Now जैसे मैंने बोला कि फूरियर ट्रांसफॉर्म है या फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन है, what we have to do is we have to check whether the function is even or odd. We know that mod of minus x is mod x, तो हमको क्या मिलेगा, what we will get, this is even function because यहाँ पे कुछ वैल्यू चेंज नहीं होंगे, चेंज कहाँ पे होगा, x की जगह माइनस डाल के इंटरवल में चेंज होगा, बट mod of minus x is same as mod x, so we get the same interval. So f of minus x equal to f of x, hence function is even function. Okay, अगर function even है तो हमको क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, cosine transform, that we have to calculate Fourier cosine integral representation. Okay, तो Fourier cosine integral representation कैलकुलेट करना है तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव टू कैलकुलेट fc लैम्बडा. fc लैम्बडा का फॉर्मूला क्या है, इंटीग्रेशन 0 to infinity f of u cos lambda u d. Now if you observe the interval कैसे ब्रेक है, फर्स्ट mod x less than 1 मतलब -1 less than x less than 1. Okay, then mod x greater than 1 मतलब x greater than 1 x less than -1. तो हमको 0 to infinity ब्रेक करना पड़ेगा 0 to 1 and 1 to infinity, बिकॉज निगेटिव नंबर्स है ही नहीं उसमें, तो ये एक्सप्रेस किया इंटीग्रेशन 0 to infinity
sorry, 0 to 1 f of u cos lambda u du plus 1 to infinity f of u cos lambda u d. देन वैल्यू रिप्लेस करते हैं f of u की. In 0 to 1 value is 1 and 1 to infinity value is 0. तो आपको क्या मिलेगा? You will get only first integration, second integration 0 हो जाएगा. So first integration 0 to 1 f of u is 1 cos lambda u d. What is the integration of cos lambda u? Sin lambda u divided by lambda u का derivative with respect to u, that is lambda, from 0 to 1. अपर लिमिट सब्स्टिट्यूट किया, sin lambda upon lambda minus 0, that is sin lambda upon lambda. This is fc lambda. Hence Fourier integral is given by 2 upon pi integration 0 to infinity fc lambda cos lambda x d lambda. So fc lambda की वैल्यू रिप्लेस करना है. This is your required solution. मेथड क्या है देखो, मैं रिवाइज करता हूँ. फर्स्ट वी विल चेक वेदर इट इज इवन और ऑड. इवन है तो वी कैलकुलेट fc lambda. ओके, fc lambda कैलकुलेट करने के बाद फॉर्मूले में वैल्यू रिप्लेस किया. क्वेश्चन कौन सा है, टाइप क्या है? फाइंड द फूरियर इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन. तो उसका प्रोसीजर चेक इवन ऑड. इफ इट इज इवन we calculate fc lambda, and in the formula we replace the value and we get the Fourier integral representation. Here फर्स्ट टाइप का एग्जांपल क्लियर है, Fourier इंटीग्रल रिप्रेजेंटेशन निकालने का. एनी डाउट? कुछ डाउट है तो पूछ लो, बिकॉज Fourier और Z में मैक्सिमम क्वेश्चंस होंगे और ये सभी क्वेश्चंस लेंदी क्वेश्चंस होंगे. यू नीड टू कैलकुलेट द आंसर. ओके, कुछ डाउट है किसी को तो पूछ लो. यस, एनीवन हैविंग डाउट? No, sir. ओके, आई होप थोड़ा सा क्लियर हो गया होगा क्या है. सो लेट्स, चलो आप लोगों के लिए एग्जांपल राइट डाउन. टेक ओनली 5 minutes, नॉट मोर देन दैट. फाइंड Fourier integral representation of f of x equal to interval pi by 2 sin x mod x less than pi, 0 mod x greater than pi. फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करोगे आप? इवन ऑड चेक करना है. चेक वेदर इट इज इवन और ऑड. Yes, is it even or odd? Odd function. Odd function, correct. So as soon as it is odd, what we have to do? Fourier sine transform. करेक्ट. एफ एस लैम्बडा कैलकुलेट करना है.
माइनस टाइम साइन एक्स, तो ये इंटरवल में चेंज नहीं होगा, चेंज कहाँ पे होने वाला है, यूनिट चेंज ओवर हियर, सो दिस माइनस बाहर साइन लेते हैं हम, तो आपको क्या मिलेगा, यू विल गेट minus times f of x. So f of x is an odd function. Hence we calculate Fourier sine transform. तो Fourier sine transform का फॉर्मूला क्या है, f of u sin lambda इंटीग्रेशन 0 टू इंफिनिटी f of u sin lambda u du. अगेन इंटरवल कैसे डिफाइन होगा, माइनस पाई टू पाई, और मतलब 0 टू पाई और पाई टू इंफिनिटी, तो वो इंटीग्रेशन सेपरेट हो जाएगा, सो इंटीग्रेशन सेपरेट किया, देन f of u की वैल्यू रिप्लेस किया, इंटीग्रेशन 0 टू पाई, पाई बाय 2 साइन लैम्बडा यू, साइन यू डी यू, यहाँ पे 2 एडजस्ट कर दिया, तो 2 से डिवाइड मल्टीप्लाई करके पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई 2 साइन यू साइन लैम्बडा यू डी यू, तो 2 साइन ए कॉस साइन बी का फॉर्मूला यूज करना है, दैट इज 2 साइन ए साइन बी का फॉर्मूला क्या है, साइन ऑफ सो कॉस ऑफ ए माइनस बी माइनस कॉस ऑफ ए प्लस बी, पाई बाय 4 इंटीग्रेशन 0 टू पाई कॉस ऑफ u माइनस लैम्बडा u, मतलब u कॉमन निकाला 1 माइनस लैम्बडा टाइम्स u माइनस कॉस ऑफ 1 प्लस लैम्बडा u, तो पाई बाय 4 एज इट इज, इंटीग्रेशन कॉस का इंटीग्रेशन साइन है डिवाइडेड बाय 1 माइनस लैम्बडा डिवाइडेड बाय 1 प्लस लैम्बडा, अपर लोअर लिमिट अप्लाई करना है, लोअर लिमिट साइन 0 इज 0, तो लोअर लिमिट 0 हो जाएगा, एंड अपर लिमिट में ये बचेगा आपको आपके पास, देन we know that sine of pi minus theta, sine of pi minus theta is sin theta and sine of pi plus theta is minus sin theta, तो उसका अप्लाई कर किया यहाँ पे, तो आपको मिलेगा साइन ऑफ प्लस साइन ऑफ लैम्बडा पाई अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, सॉरी 1 माइनस लैम्बडा 1 प्लस लैम्बडा, साइन ऑफ लैम्बडा पाई कॉमन निकाला बाहर, तो आप ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 अपॉन 1 माइनस लैम्बडा प्लस 1 अपॉन 1 प्लस लैम्बडा, दैट इज क्रॉस मल्टीप्लाई करके 1 माइनस लैम्बडा स्क्वायर डिनोमिनेटर में आ जाएगा। देखो ऑब्जर्व इट, कुछ डाउट है तो पूछ लो। Is it clear to everyone? Any doubt? कुछ भी डाउट है तो पूछ लो। Is it clear to everyone? किसी को डाउट है? एटलीस्ट रिप्लाई yes और no जो भी है। Yes, sir. It is clear.
Okay. So Fourier integral representation यहाँ पे वैल्यू रिप्लेस हो जाएगा. Next. Clear? Yes, sir. Yes, sir. Okay. Write down this example. This is for homework. No, sorry. Sorry, and this is Fourier transform. Next, Fourier transform का example है. Let's find the Fourier sine transform of f of x equal to. Splitted है again. X square 0 less than x less than 1, 0 x greater than 1. So Fourier sine transform definition क्या है Fourier sine transform का? What is the definition of Fourier sine transform? What is the definition of Fourier sine transform? किसी को पता नहीं है, बोलना नहीं है. I don't know क्या प्रॉब्लम है. Definition of Fourier sine transform. अभी आपने Fourier sine integral representation किया, उसमें यूज किया ना. क्या है डेफिनेशन Fourier sine transform का? Am I audible? So, Yes. sir, you are asking formula. No? Yes, formula for Fourier sine transform. अभी निकाला ना आपने पिछले एग्जांपल में. Yes, sir. हाँ, F of formula. lambda F of lambda equals to integration 0 to infinity f of u sin lambda u du. Correct. So use this formula and take 3 minutes to calculate this. देखो ये questions ऐसे question, ये जो question लिया है this is from MCQ exam. Already ये question MCQ में आया है. Find the Fourier transform of this function. तो आप कैसे कैलकुलेट करोगे if you don't? स्पीड करना पड़ेगा प्रैक्टिस के लिए. और क्वेश्चंस बहुत सारे बन सकते हैं Fourier ट्रांसफॉर्म में. lambda u minus 2u double integration sin lambda u du plus 2 sin 2 triple integration sin lambda u from 0 to 1. इंटीग्रेशन कैलकुलेट किए, सिंप्लीफाई किया, अपर लोअर लिमिट डाला. You should get this answer. How many of you have got this? How many of you have got this solution? देखो practice is very important. Unless and until you do the practice, तो difficult हो जाएगा. Okay? Try to solve
maximum number of questions. That is very important. Okay. Clear है solution सभी को? Is it clear to all of you? Yes. 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 Okay. Yes, sir. फटाफट से ये एग्जांपल ट्राई करो, फूरियर कोसाइन ट्रांसफॉर्म. में 25% 50% तक क्वेश्चन इस टॉपिक पे आए थे. तो हो सकता है अलग अलग कॉम्बिनेशन में आते हैं, वी डोंट नो, बट हो सकता है. तो यू नीड टू कैलकुलेट द इंटीग्रेशन. ओके, और ज्यादा डिफिकल्ट वाला एग्जांपल नहीं है. ठीक है, लास्ट एग्जांपल लेते हैं आज का. फाइंड द फूरियर ट्रांसफॉर्म ऑफ So first we find Fourier transform को question है, so we have to check whether it is even or odd. Is it even or odd? जहां पर x है वहां पर आपको -x रिप्लेस करना पड़ेगा. It is neither even Odd. nor odd. No. Odd. odd कैसे आएगा? माइनस ये 1 0 तो चेंज नहीं होगा ना आपका. 1 0 तो चेंज नहीं होगा. It is neither even nor odd because -x greater than 0 मतलब x less than 0. So -x जब रिप्लेस करोगे तो x less than 0 के लिए वैल्यू आएगा 1. But in original function for x less than 0 value is 0. Hence it is neither even nor odd. Okay? Function is neither even nor odd. Odd कैसे निकाला? मुझे एक बार even समझ में आता तो ठीक है, तो even आंसर आता तो. It is how you guys have given odd तो मुझे समझ में नहीं आया. माइनस टाइम्स f of x कैसे आएगा वहां पे? It's not possible, ना? माइनस नहीं आने वाले. सो इंटीग्रेशन सेपरेट किया, माइनस इन्फिनिटी टू 0, सॉरी यहाँ पे करेक्शन है, माइनस इन्फिनिटी टू 0, 0 टू इन्फिनिटी, वैल्यू रिप्लेस किया. सेकेंड इंटीग्रेशन, फर्स्ट इंटीग्रेशन इज 0, सेकेंड इंटीग्रेशन e raised to minus I lambda u du, e raised to minus I lambda u का इंटीग्रेशन e raised to minus I lambda u upon minus I lambda from 0 to infinity. And we know that e raised to minus infinity क्या होता है? 0 होता है. So we get 0 minus 1 upon I lambda. So 1 upon I lambda, yeah, 1 upon I is nothing but minus I. So minus I upon lambda. This is the required solution. Clear? Is the solution clear to everyone? Okay. I'll be sharing the notes immediately after this lecture with you. Go through it. अगर कुछ डाउट है आपको तो आप पूछ सकते हो. ओके, चलो मैं एब्सेंट रोल नंबर्स बोल देता हूँ एक बार. रोल नंबर 1, रोल नंबर 22, 28, 25, 32,
36, 37, 38, 39, 41, 55, 69, 70, and 74. Okay, so try to solve maximum number of examples. I guess you have lecture here. Yes, sir. Join हुए sir madam.